Namaskaram, this is Priya, and as the video title suggests, today I'm going to talk about the thermogenic effect of food in weight gain and weight loss. जब भी हम weight gain या weight loss की बात करते हैं, so we already know that there are many aspects of losing weight or gaining weight, such as our lifestyle, our involvement with physical activities, and diet. And that is our primary concern when we aim for either weight gain or weight loss. There are n numbers of diet plans for specific goals, but in today's video, I'm not going to talk about any specific diet plan, but I want to discuss on the effect and the nature of the food which play key role in making our body the way we want it to be. हम खा क्या रहे हैं और उस खाने का हमारे बॉडी पर असर क्या हो रहा है, ये दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर फूड एंड द इफेक्ट ऑफ द फूड ऑन योर बॉडी. नाउ लेट्स बिगिन दिस सेशन with an example to understand the whole concept of thermogenic effect of food. Assume that there are two different persons. Let me use my hand as a prop. Imagine कीजिए दो अलग अलग व्यक्ति हैं और इन दोनों ही व्यक्तियों को हम सेम कैलोरी कंटेंट में मील प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एक को हम बैगन की सब्ज़ी दे रहे हैं और दूसरे को हम गोभी की सब्ज़ी दे रहे हैं. बैगन जिसे हम ऑबरजीन, एग प्लांट, व्हाट एल्स, ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं, और गोभी जिसे हम इंग्लिश में कैबेज कहते हैं. अब ओवर टाइम हम क्या देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने ब्रिंजल, बैगन खाने में दिया है उसका वेट लॉस हो रहा है, और जिसे हमने गोभी खाने में दिया है उसका वेट गेन हो रहा है. इस पूरे एग्जाम्पल में तीन बातें नोट करने लायक हैं. पहला कि दोनों ही व्यक्तियों को हमने सेम कैलोरी कंटेंट में मील दिया. दूसरा, दोनों को डिफरेंट सब्जियां दी, अलग अलग सब्जियां दी. तीसरा, रिजल्ट डिफरेंट आया. एक का वेट लॉस हो रहा है, एक का वेट गेन हो रहा है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? टू अंडरस्टैंड दिस वाई दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड ये क्यों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थर्मोजेनेसिस को. सो व्हाट इज़ थर्मोजेनेसिस? Thermogenesis is the amount of energy expenditure above the basal metabolic rate, which is also known as BMR, due to the cost of processing food for use and storage. Too technical. Let me give it a try in more simpler words. So the thermogenic effect of food is the energy required for digestion, absorption, and disposal of the ingested nutrients. And modern science has been talking about this thermogenesis rigorously, and there are multiple studies happening all around the world, and one of them is very noticeable, is from Oxford Brookes University, and they have this whole department of which is called as Functional Food Center. So they conducted a study on chili effect, and it shows that if you consume chili in your diet, in your meal, over time it will help you to lose weight and prevent weight regain. तो अगर आप चिली कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में कुछ टाइम के लिए, तो ये आपको ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू वेट लॉस, एंड जो वेट गेन और रीगेन का हमें प्रॉब्लम होता है ये उसको भी प्रिवेंट करेगा. और ऐसा होता है चिली के हीटिंग इफ़ेक्ट से. चिली जब हम कंज्यूम करते हैं, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इट लीव्स अ हीटिंग इफ़ेक्ट. ओके, और इस हीटिंग इफ़ेक्ट के वजह से वो वेट लॉस होता है. नाउ व्हाट इज़ दिस हीटिंग एंड कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ फूड? यही थर्मोजेनेसिस का एक पार्ट है. आई मीन नॉट पार्ट है, बट इट इज़ ऑल अबाउट दैट. और इस कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए वी नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम आयुर्वेदा. यस, आयुर्वेद डिस्कस दिस thermogenesis in a very profound. In Ayurveda, it is described in Ashtanga Hridayam of Vagbhat at Shlok 17, Chapter 1,
that each eatable substance, whether medicine or food, either has cooling or heating effect on our body, and the term used to describe such characteristics are Oshadvir and Shivir. In Unani system of medicine, this is called as Thandi ya Garam Tasir, and I'm pretty sure a lot of you must have heard of this word Tasir either through your parents or grandparents. So we understand the general concept of hot and cold food. जैसे कि अगर मुझे इमेजिन करना है एक हॉट और कोल्ड डिश की, आई वुड इमेजिन a bowl of steaming pumpkin soup and a dish of frozen gelato or an ice cream, right? But Ayurvedic concept of hot and cold food has no correspondence to the temperature of the food. जैसे कि आइसक्रीम ठंडी होती है but it has heating effect on our body. An icy cold beer, while refreshing, it incites heat in our digestive system. Pumpkin, even served hot, it has cooling effect on our body. तो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड का कोई भी लेना देना उस फूड के टेम्परेचर से नहीं, बल्कि उस फूड का हमारे बॉडी पर क्या असर हो रहा है, वो ठंडी है या गर्मी जनरेट कर रही है, उससे लेना देना. सो इफ़ यू आर स्ट्रक्चरिंग योर डाइट प्लान फॉर ईदर वेट गेन और वेट लॉस, you should consider the thermogenic effect of the food you are adding in your diet. जो एग्ज़ाम्पल हमने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि दो व्यक्ति हैं, एक को हमने बैगन दिया, एक को हमने गोभी दिया. जिसे हमने बैगन दिया उसका वेट लॉस हो रहा है, जिसको हमने गोभी दिया उसका वेट गेन हो रहा है. जिसका वेट लॉस हो रहा है उसका वेट इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि बैगन हैज़ हीटिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि उसके एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है. जब कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है ऑब्वियसली वेट लॉस होगा. तो जब भी हम अपना डाइट प्लान स्ट्रक्चर करते हैं हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उन फूड्स का जो हम अपने डाइट प्लान में ऐड कर रहे हैं उसका असर हमारे बॉडी पे किस तरह से. कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको दाल में सौंफ का तड़का लगाना चाहिए, ना कि जीरे का तड़का लगाने पे वेट लॉस होगा, गेन नहीं. अगेन अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको हनी ठंडे पानी में लेना चाहिए. अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको हनी ल्यूकवार्म वाटर में लेना चाहिए. ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं. स्पाइसेस, हमें स्पाइसेस किस फॉर्म में लेना चाहिए. जैसे कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको सब्जियों में गरम मसाले की जगह धनिया पाउडर यूज़ करना चाहिए, और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो गरम मसाला यूज़ कीजिए. मिर्च का इफ़ेक्ट मैंने बताया ही, जो कि ऑक्सफोर्ड ने ऑलरेडी स्टडी कंडक्ट किया है. गो एंड वॉच दैट रिसर्च पेपर. आई ट्राई टू लिंक द होल पेपर इन द वीडियो in the description box. And yeah, that's all for now. I hope you like the video, you like the information, and I will try to give you like a proper diet plan for weight loss and weight gain in a separate video. Till then, namaskar.